Good afternoon, everyone. Last time, I hope you have got this particular homework or worksheet to solve. The part was covered in the last lecture was Karakani and Upapad Vibhakti. Okay, so this was your homework. I hope everyone had done the homework. Let's check the answers quickly. Okay, तो एक बार revision भी हो जाएगा हमारा and then we're going to start with the new lesson today. Okay, so first question was Karaka Parichayam Kuruta. You have to write down the names of Karaka and you have to just focus on the words which are highlighted and underlined. Then second question was Upapad Vibhaktehe Upayogam Krutva Vakya Nirmanam Kuruta. You have to frame one sentence for the given Upapad word, that is maybe Avyay or sometimes it may be Dhatu. So here are the answers on the screen. Quickly check the answers. Karaka Parichayam Kuruta. Jalam is karma. Sudakhandena means with chalk. So it is Karanam, instrument. Chitrapatam is karma. We have to remove that mata, just focused on Churikaya in the fifth question. Churikaya means with knife. So the answer is Karanam. Rathat means from chariot. So answer is Apadanam. Then Udyane is a place. Then it is Adhikaranam. Rama is the doer of the action, so it is Karta. Then Avakashat is Apadanam. Chhatrebhyah is Sampradanam. ओके देन उपपद विभक्ति के जो भी क्वेश्चंस है वो हमने सब डिस्कस किए थे एंड वी हैव रोट ऑल द 10 sentences are here only. Just see how you have to present in your board exams. So आपको एक जो भी सेंटेंस आपने प्रिपेयर किया है वो लिखना है एंड यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड व्हिच इज इन एक्सपेक्टेड विभक्ति. So you have to present like this. Okay. So regarding this two topics, कारकाणी और उपपद विभक्ति, कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज बिलो चैट में जो भी है आपको लिखना है, क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हो. We're going to start with the next lesson today. Okay students, so before starting with the lesson मुझे आपको कुछ important rule एक बार बस रिवाइज करना है. I know you are very bright students and you know this rule, but just एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये हम जो म प्रोनाउंस करते हैं संस्कृत में विच इज हाफ म, ओके, हलंत म जिसको हम बोलते हैं, इनकम्प्लीट म, कभी कभी अनुस्वार जैसे भी लिखा जाता है. तो कब लिखा जाता है ये हमें अभी पता होना है. If you have to score 100 out of 100 और 50 out of 50, ये सब चीजें भी बहुत केयरफुली आपको देखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो पहला सेंटेंस यहाँ पे है वेन राजः पालनम नाकरोत. तो स्टूडेंट्स वहां पे देखो आई हैव हाईलाइटेड द लेटर न बिकॉज ऑन द लेटर न देयर इज वन अनुस्वार. वो वर्ड को मैं कैसे रीड कर रही हूँ, पालनम अनुस्वार. व्हाई? बिकॉज दैट वर्ड पालनम इज फॉलोड बाय न विच इज व्यंजन. सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन. अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके एंडिंग में हलंत म आता है एंड इट इज फॉलोड बाय व्यंजन क ख ग घ से लेकर श ष ज्ञ तक, ओके, कोई भी व्यंजन आता है, देन यू हैव टू पुट अनुस्वार एंड रिमूव दैट हलंत म. इसीलिए पालनम के बाद न आया, सो वी हैव पुटेड द अनुस्वार. देन नेक्स्ट है वेन राजः राजधर्मस्य पालनम अकरोत्. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पालनम वर्ड इज एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है विथ हलंत म बिकॉज इट इज फॉलोड बाय स्वर. जब भी ये स्वर से फॉलो होगा वी हैव टू कीप एज इट इज. देन द थर्ड सेंटेंस इज तत्र यानम के बाद स्वर है, सो हलंत म.
वैसे का वैसा रखना है. एंड whenever this हलंत म will come at the end of the sentence, it should remain as it is. Okay. देन लास्ट वन इज कोई ऑब्जेक्ट का नाम हमें लिखना है. जैसे कि आपको चित्रपद कोश था 8 एंड 9th में, सेम विल बी देयर इन 10th स्टैंडर्ड. वो हम थोड़ी एक दो लेक्चर में सीखने वाले अभी. तो ये जो चित्रपद कोश है उसके ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखते वक्त कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट का नाम एंडिंग इन हलंत म में होगा तो एज इट इज लिखना है, उसको कभी भी अनुस्वार नहीं बनाना है. तो सिंपली रिमेंबर ये हलंत म एवरीवेयर एज इट इज यूज करना, बट व्हेनेवर इट इज फॉलोड बाय some consonant vyanjan, then you should remove halantama and you should put anuswar in the place. Okay, so let's start with the first lesson of your 10th standard syllabus, that is adya krushakah prithuvainyah. So here in the title itself there are total 3 words. Adya means first, krushakah means farmer, and prithuvainya is name of that farmer. अब ये जो पृथुवैन्य है, दो यहाँ पे उसको फार्मर बोला है, वो ही वॉज एक्चुअली अ किंग. स्टोरी कैसे है वो सब हम देखेंगे, बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल वन थिंग. कोई भी लेसन, पोएम, चैप्टर, कोई भी ग्रामर का टॉपिक या फिर राइटिंग स्किल्स का टॉपिक हम देखेंगे तो उसके में पूरे टॉपिक में हमें क्या फोकस करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये बार बार सोचो बच्चों. क्योंकि अभी ये जो अभी लेसन हम लोग देखने वाले हैं, डोंट रट्टोफाई द ट्रांसलेशन एट ऑल. इसमें कोई भी हमें ट्रांसलेशन नहीं पूछने वाला है. जो भी 2 लेसन एंड पॉइंट्स के ट्रांसलेशन होंगे वो खुद आपको प्रोवाइड करूंगी, खुद आपसे लर्न करके लूंगी. अभी हमें यहाँ पे फोकस करना है ऑन द वर्ड्स विच टॉपिक. इसके ऊपर ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं. इसके ऊपर एक वाक्य न उत्तरत आने वाला है. इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य, ऐसे सब क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आप उसके ऊपर फोकस करना. ट्रांसलेशन रट्टोफाई करना ये हमारा गोल नहीं है फॉर दिस लेसन. ओके, इज इट क्लियर? देन आद्य कृषक पृथुवैन्य. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फर्स्ट फार्मर नेम्ड पृथुवैन्य. देखते हैं स्टोरी में क्या. जो स्टोरी है, इट इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद. ऋग्वेद वाज अ एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया. द स्टूडेंट्स, ये ऋग्वेद में एक बहुत ही क्या कहेंगे हम, बुरा, एकदम बैड रूलर था, राजा था. उसका नाम है वेनभूप. नाउ दिस किंग वेनभूप वाज वेरी बैड रूलर. एंड ये वेनभूप का जो बेटा है, सन ऑफ वेन, इसीलिए उसका नाम बन गया वैन्य. वेन से बना हुआ वर्ड है वैन्य, एंड हेंस द नेम ऑफ द सन ऑफ वेन किंग इज वैन्य. ऑल्सो उसका फुल फॉर्म है पृथुवैन्य. एंड ये पृथुवैन्य जो है वॉज द फर्स्ट फार्मर ऑन द अर्थ, ऐसा इंडियन लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है. अब ये जो पृथुवैन्य है उसने क्या किया, तो सिंपली हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. बहुत हमारे हिस्ट्री में बहुत बाद में रिसेंटली लेटेस्ट में हुआ है, बट ये जो रिवॉल्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ऋग्वेद वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन है. वेरी फास्ट एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में ये लिखा हुआ है. तो उसने सिंपली एग्रीकल्चर कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एंड अपने गांव में एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाना है, पृथ्वी को कैसे हरा भरा रख सकते हैं, ये सब पृथुवैन्य ने सोचा. एंड इसीलिए फ्रॉम पृथु, उसके नाम से हमने धरती को, अर्थ को नेम दिया, एंटाइटल किया एज पृथ्वी और पृथ्वी. तो देखो बिफोर दैट हम लोग अर्थ बोलते थे, बट अर्थ को और एक नया नाम मिला पृथुवैन्य से, because he was the one to take care of the earth. I hope you have observed the pictures. Then let's move ahead. We are going to start with the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में पहला ही सेंटेंस है, भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट. सी हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड अभिषिक्तः. ओके, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान दो, ओरल एग्जाम देना है हमें. देन प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्. तो सबसे पहले बोला है कि दिस पृथुवैन्य इज भूपालः. भूपालः मीन्स किंग. धरायाम मीन्स ऑन द अर्थ. प्रथमः मीन्स फर्स्ट. अभिषिक्तः इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आई होप स्टूडेंट्स आपके पास पेन एंड आपका नोटबुक है तो वहां पे नोट डाउन करके ले लो. अभिषिक्तः मीन्स कोरोनेटेड.
जिसका कोरोनेशन सेरेमनी हो गया है, जिसको क्राउनिंग सेरेमनी कर दिया है, उसको हम बोलेंगे अभिषिक्तः। Okay, then next, Samrat means emperor. So King Prithuvanya was the famous emperor on the earth who was coronated recently. Then Prayaga Kshetre Prithunupasya Rajdhani Asit. Prayaga is the name of the region जो अभी मैं आपको pictures दिखाने वाली हूँ. And Prithunrupa is again a proper noun of the king. Rajdhani is capital. So Prayaga was the capital of King Prithu. I hope both the sentences are clear. Now on the next slide, here is a picture for Prayag. Okay, ये जो प्रयाग रीजन है इसको जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. संस्कृत के हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे हम कैरेक्टर या फिर इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस कॉल्ड प्रयाग. अभी इसको हम अभी बोलते हैं इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद. ओके, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन है, मराठी में इलाहाबाद और हिंदी में इलाहाबाद. अभी ये नाम रखने से पहले सबसे पहले इलाहाबाद या इलाहाबाद का पहला नाम था प्रयाग. ओके, आफ्टर दैट व्हेन इन 1583 अकबर वाज रूलिंग दिस पर्टिकुलर रीजन, देन अकबर ने अल्लाह का शहर ऐसा समझकर उसको नाम रख दिया इलाहाबाद. अब ये जो इलाहाबाद है, जब अकबर के बाद ब्रिटिश यहाँ पे रूलिंग करने के लिए आए, उनको ये प्रोनाउंसिएशन रोमन लिपि में लिखना था एंड इसीलिए उन्होंने कर दिया इलाहाबाद. ओके, जिसको हम मराठी में बोलने लगे इलाहाबाद. एंड अगेन नाउ इन 2019 हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसका नाम फिर से कर दिया है प्रयागराज. क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, द पिक्चर विच इज बिलो वन, नीचे जो है पिक्चर, सेकंड पिक्चर, वो पिक्चर इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ 3 रिवर्स. ओके, गंगा, यमुना एंड लास्ट वन इज सरस्वती रिवर. तो 3 नदियों का संगम, यूनियन पॉइंट है प्रयाग, एंड इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा सैक्रिफिशियल प्लेस माना गया है, एंड हेंस उसका नाम है प्रयाग. याग मीन्स सैक्रिफाइस एंड प्र मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाता है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. देन वी हैव पैराग्राफ का वही सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो वी हैव सम संधि विग्रह. तो वो भी मैंने स्क्रीन पे रख दिए हैं, मैं एक एक करके आपको वो संधि सॉल्व करके उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी. देन पहले रीड कर रही हूँ पैराग्राफ. राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुमुत्सुकाः. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पहला संधि आ गया है गातुमुत्सुकाः. वी हैव टू स्प्लिट द वर्ड एट मूव, इसीलिए मैंने वो मूव को येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है. ओके, इसको हम सिंपली बोलेंगे म मा मी मी संधि. देखो आज से आपका एक नया छोटा सा ग्रामर टॉपिक इन बिटवीन द लेसन एंड पोएम ही होने वाला है. मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर संधि को हम बोलेंगे म. ये म मा मी मी क्या है? म मा मी मी मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ म विथ ऑफ म विथ वॉवेल. ये सब मैं संधि के लेक्चर में लिखवा के दूंगी, अभी सिर्फ आपको रिकलेक्ट करना है. ओके, एंड ऐसा जब भी हमें दिखेगा कोई भी म मा मी मी का कॉम्बिनेशन हमें जॉइंट ऑफ संधि में दिखेगा, दैट word at there itself. You have to split the first word at halanta ma, and then next word surely starts with vowel. अगर next word starts with u, ma होता तो next word starts with a, mi होता तो next word starts with e. I hope I'm clear. So gatum utsukaha का dissolution है gatum plus utsukaha. Am I audible? Someone is messaging that little breaky. Okay. No, ma'am, you're audible. There's no problem. There must be some problem from that particular person's. One or two students are replying that voice is breaky or something. Like No, ma'am. It's clear to me. So maybe the problem is from at their end. Okay. ठीक है sir. Thank you. Okay. So Rajyabhisheka समय at the time of coronation. Rajyabhisheka means coronation. Charanaha is new word for you. Charanaha means bard.
जिसको हम बोलेंगे वॉन्डरिंग सिंगर्स, घूमने वाले सिंगर्स। मतलब ये एक जगह पे नहीं रहते, इनको बस इवेंट का कुछ काम मिल गया, दूसरे जगह पे जाते हैं, अगेन इवेंट का काम मिल गया और कोई नए प्लेस पे जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे बार्ड्स। चारणाहा मीन्स बार्ड्स, प्लीज नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट है पृथु निरूपस्य, मीन्स ऑफ किंग पृथु, praisings, and gatum means to sing, utsukaha means eager। तो पहले लाइन का at the time of coronation ceremony, bards are very eager to sing King Pruthu। कोरोनेशन सेरेमनी का ये पैराग्राफ है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे आए हुए जो सिंगर्स है, दे आर वेरी ईगर टू सिंग समथिंग प्रेजिंग। ऐसा कोई सॉन्ग बोलना चाहते हैं, वो गाना चाहते में हो, ओके, पृथु को अप्रिशिएट करता हो। चलो बच्चों, हमें सेकेंड लाइन पे फोकस करना है। सेकेंड सेंटेंस, तदा पृथु आज्ञापयत। एट दैट टाइम किंग पृथु आज्ञापयत मीन्स ऑर्डर्ड। जैसे ही वो गाना स्टार्ट करने वाले थे, थोड़ा सा गाना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर भी दिया था, उसके बाद पृथु ऑर्डर्ड समथिंग टू दैट बार्ड्स। क्या ऑर्डर किया उसने? तिष्ठन्तु चारणाहा। तिष्ठन्तु का मीनिंग यहाँ पे टू स्टैंड नहीं है। तिष्ठन्तु का मीनिंग यहाँ पे हमें लेना है टू स्टॉप। ओके, स्टॉप मीनिंग लेना है। चारणाहा मीन्स बार्ड्स। पृथु ने ऑर्डर किया, स्टॉप सिंगिंग दैट, ओ बार्ड्स स्टॉप सिंगिंग दैट। क्यों ऐसा बोला पृथु ने? तो नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू करते। यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावद अहम न स्तोतव्यः। इसमें सबसे पहले एक संधि है, वो संधि तावद अहम। ओके, सेकेंड संधि मैंने लिखा हुआ है राइट साइड पे, देखो स्क्रीन पे। तावद अहम में वी हैव हाईलाइटेड द, तो यहाँ पे द जॉइंट ऑफ टू वर्ड्स, इसको हम कहेंगे द दा दी दी संधि। देखो, पहला था ममा मिमी संधि, द सेकेंड वन इज द दा दी दी संधि। I know these terms are new for you, but this is a simple hints to remember। संधि के बड़े बड़े नाम एंड रूल याद रखने से अच्छा है कि हम इसको कहे द दा दी दी संधि। ये द दा दी दी संधि like mama mimi संधि, first word ends in हलंत त। स्टूडेंट्स, द ममा मिमी संधि का थोड़ा एक्सटेंशन है ये। इसमें फर्स्ट in the itself, the changes to the, incomplete the, and first word ends in incomplete। Next word you have to write down as it is aham। Then यहाँ पे अभी मीनिंग देखते। यावत मम सद्गुणाः, यावत मम सद्गुणाः, सद्गुणाः मीन्स गुड वर्चूज, जब तक मेरे अच्छे गुण, ओके, एज लॉन्ग एज माय गुड वर्चूज न प्रकटी भवंती। प्रकटी भवंती मीन्स मैनिफेस्ट। हम इसको यहाँ पे पास्ट टेंस Ma'am, we've lost your voice actually. Ma'am, can you hear me? You've lost your voice, ma'am. means I is made up of a plus a। Okay, so ईश्वरस्यैव, ईश्वरस्य प्लस एव। तो यहाँ पे पृथु बोल रहा है कि मुझे अभी प्रेज मत करो। प्रेजवर्दी अभी सिर्फ गॉड है, अलमाइटी। अलमाइटी इज ओनली द प्रेजवर्दी, गॉड इज ओनली द प्रेजवर्दी वन। क्योंकि अभी तक जो भी आपको मिला है सब भगवान ने दिया है। मैं तो अभी राजा बन के आया हूँ, जस्ट आपके लिए काम करने वाला हूँ।
आफ्टर दैट पृथु का डायलॉग यहाँ पे खत्म होता है. देन स्तुति गायकाः, अगेन न्यू वर्ड फॉर यू. स्तुति गायकाः means bards, चारणाः. Okay, similar word for चारणाः. पृथु नृपस्य of king पृथु एतादृशीं such निस्पृहताम, very important word, note करना students इसको. निस्पृहताम means desirelessness, detachment. ज्ञात्वा, this is a त्वांत अव्यय. After realizing or having realized means ज्ञात्वा. प्रसन्नाः means pleased and abhavan means became. So bards became very pleased after realizing that King Prithu is very desireless and detached. उसको कोई फेमस नहीं होना है, उसको प्रेजिंग्स नहीं चाहिए, उसको बस प्रजा के लिए काम करना है. ये देख चारणज है, बार्ड हो गए. आई होप यहाँ तक फर्स्ट पैरा क्लियर है. Okay, we are starting with the second paragraph of the lesson. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्. Once King Prithu was wandering in his own kingdom. Swarajye, own kingdom, and Brahmanam, wandering, roaming, घूमना. Brahmana Samaye, at the time of wandering, Tena, by him, Drushtam, seen. Something is seen by King Prithu. क्या देखा उसने? यत् कि प्रजाः अतीव क्रूशाः अशक्ताश्च. प्रजाः means subjects. उसकी जो प्रजा है अतीव very, क्रूशाः थिन, अशक्ताः च. यहाँ पे एक संधि है, अशक्ताः प्लस च. श चेंजेस टू विसर्ग. हमें यहाँ पे याद रखना है, श चेंजेस टू विसर्ग. श, स and र always changes to visarga. I am repeating it again. श, शामरुग वाला श, शांति वाला श, स and r changes to visarga. So ashaktaha plus ch. Okay, so two important words, krushaha means thin and ashaktaha means weak. So ये दोनों भी जो है they are adjectives of the word prajaha. अगर आपको क्वेश्चन आया कि प्रजाहा कीदृशी, तो आपको वहां पे लिखना है क्रूशाहा अशक्ताहा च. या फिर आपको मैच द कॉलम में विशेष आपको लिखना है. प्रजाहा के लिए दो विशेषण है, क्रूशाहा एंड अशक्ताहा. ओके, सेकेंड सेंटेंस. ताहा प्रजाहा पशुवत जीवंती. न्यू वर्ड फॉर यू स्टूडेंट्स एंड दैट इज अ संधि वर्ड, पशुवत जीवंती. आई होप सब फ्लो में है, कोई पीछे नहीं है. जो भी आपके डाउट्स है या कुछ मिस हो गया तो हम बाद में फिर से एक बार एंड ऑफ द लेक्चर में रिपीट करेंगे. पशुवत जीवंती. अभी यहाँ पे देखो देयर इज अ संधि, इसको हम नेम देने वाले डबल ज वाला संधि. ओके, डबल ज, डबल ल, ऐसे संधिज हमें दिखने वाले हैं बहुत बार. अभी व्हेनेवर वी हैव these kinds of sandhis, double j, double l वाले संधि, then always remember students, the first half j changes to t. The first half j, incomplete j, changes to t. So pashuvat jivanti will become pashuvat plus jivanti. I hope it is clear. Double j wala sandhi, first half j changes to t. Then taha prajaha means that praja or subjects were living like an animal. वो लोग कैसे जी रहे थे? Like an animal. Like an animal मतलब क्या? कुछ भी खाते थे, इधर उधर घूमो, झाड़ के पत्ते, फ्रूट्स, जो भी मिलता था बस वो खाते थे. खुद का ऐसा कुछ खाना उनको मिलता नहीं था, यानी कि राइस या फिर ग्रेन्स या फिर चपाती, रोटी, सब्जी, ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिलता था. दे वर लिविंग लाइक एन एनिमल. बहुत ही बदतर जानवर का जो लाइफ होता है वैसे वो लोग जी. कोई भी उनका ख्याल रखने के लिए अच्छा राजा अभी तक नहीं था. देन नेक्स्ट उनका जो कंडीशन है और थोड़ा एक्सप्लेन किया है राइटर ने.
निकृष्टान्नम खादन्ति. निकृष्ट means very low quality food. बहुत ही low quality food. अन्नम means food and खादन्ति means eat. So they were eating very low quality food. अभी low quality food मतलब क्या? थोड़े बहुत लोग गांव में जिनके पास पैसे है वो लेफ्ट ओवर फूड जो अपने गार्बेज में डाल देते हैं वो फूड ये गांव वाले कुछ लोग प्रजा सब्जेक्ट्स खा रहे थे. Then after that तद दृष्ट्वा अगेन वन त्वांत अव्यय इज देयर. ये त्वांत ल्यबंत जो भी है आई होप आपने 9th में सीखा है. कोई भूल गया है तो डोंट वरी एट ऑल. ये भी हम अलग से ग्रामर के एक पर्टिकुलर लेक्चर में सीखने वाले. सो नाउ जस्ट आप वहां पे देखो दृष्ट्वा मीन्स आफ्टर सीइंग और हैविंग सीन दैट इज अ त्वांत अव्यय. राजा मीन्स किंग. चिंताकुलः मीन्स डिस्टर्ब. Jatah means हो गया. So king became disturbed after seeing all this situation in his own kingdom. अपने kingdom की ऐसी बुरी हालत हो गई है, वाट लग गई है पूरी, ये देखकर किंग पृथु जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया. Then डिस्टर्ब होने के बाद क्या किया उसने? उसने अपने मंत्री के साथ थोड़ी बातचीत की. देखो हमेशा याद रखना राजा को जब भी कोई तकलीफ आती थी तो वो अपने मंत्री के साथ हमेशा बात करता था क्योंकि वो उसको फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देता था एंड देन राजा एग्जीक्यूट करता था. सो तदा एट दैट टाइम पुरोहितो वदत. अगेन संधि आ गया स्टूडेंट्स. पुरोहितो वदत. ओके जिसको सॉल्व करके पहले ही दिखाया गया है. पुरोहित प्लस अवदत. अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको हम बोलेंगे ओ एस संधि. स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे ओ एस संधि. नेक्स्ट टाइम में ये सब आपको लिख के देने वाली हूँ. ममा मिमी दादा दीदी ओ एस. ओके ओ एस संधि मतलब क्या? पुरोहितो के एंड में देयर इज अ साउंड ऑफ ओ. देखो मैं फिर से बोल रही हूँ पुरोहितो. ओ ओ चेंजेस टू अह. ओ चेंजेस टू अह. विसर्ग में चेंज हो गया. एंड दैट एस का साइन जिसको हम कहते हैं अवग्रह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आप बस याद रखना एस का साइन. एस चेंजेस टू अ. एस चेंजेस टू अ. तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा. जब भी ऐसे संधि आएंगे ओ को विसर्ग बना दो, एस को अ बना दो. सिंपल. देन नेक्स्ट हे राजन मीन्स ओ किंग. तो सबसे पहले तदा पुरोहित अवदत मीन्स देन प्रीस्ट सेड. प्रीस्ट यानी कि यज्ञ याग करने वाला उसका जो भी हेड था उसने बोला हे राजन ओ किंग धन धान्यादि सर्वम वस्तु जातम. धन मीन्स wealth. धान्य means grains. सर्वम everything. वस्तु जातम all kinds of things. वस्तुतः in fact. Okay naturally. वसुंधरा याहा. वसुंधरा is another synonym for the word भूमि और पृथ्वी और धरा anything. So simply earth का ये एक संस्कृत नाम है वसुंधरा. वसुंधरा याहा of the earth. उदर एव. यहाँ पे एक संधि है स्टूडेंट्स दैट इज उदरे प्लस एव. उदर एव को हमें स्प्लिट करके लिखना है. उदरे प्लस एव. क्या चेंज हुआ है? पहले उदर था अभी र का बन गया रे. वी हैव एडेड वन ए. एक ए को सिर्फ ऐड किया है. ऐसा क्यों हुआ? तो व्हेनेवर देयर इज ए फॉलोड बाय ए. उदरे में एक ए है एंड देखो एव इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद ए. ऐसा ए संधि जब है ए संधि इसको क्या कहेंगे? ए संधि. ए इज फॉलोड बाय ए. तो ऐसा संधि जब आता है देन फर्स्ट ए को हमें ड्रॉप करना है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ए संधि इज व्हेनेवर first word ends in a, next word starts with a, means there is a combination of a is followed by a, then drop the first a. उदरे का एक a निकाल दिया तो it will become उदर एव. Then after that next तत् प्राप्तुम और एक संधि है. इसको हम संधि नहीं बोल सकते. दिस इज एक्चुअली क्या कहेंगे हम लोग इसको कि सिंपली ये एक साथ होने ही वाले थे क्योंकि तो हाफ था तो हाफ लेटर को हम दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मैच कर ही देते. तो तत् प्लस प्राप्तुम. यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं किया स्टूडेंट्स. इट इज जस्ट अ जनरल नेचुरल संधि यू कैन से. सो तत् हाफ था तो हाफ था इसीलिए प के साथ ज्वाइन कर दिया बस. तो अभी देखते हैं मीनिंग क्या है. सो ये पुरोहित ने क्या बताया? ओ किंग धन धान्य वेल्थ एंड ग्रेन्स ये सब जो वस्तुएं है ये सब जो भी थिंग्स है आर नेचुरली वसुंधरा या उदर मीन्स बेली.
stomach of earth, earth का stomach यानी वाला भाग, वर्तते, they are there only. ये जो भी थिंग्स तुझे चाहिए ना, तेरे प्रजा के लिए वेल्थ चाहिए, प्रजा के लिए तुझे धन धान्य खाने की चीजें, ये सब जो चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, सब कहाँ पे मिलेगा तुझे? इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द बेली स्टमक ऑफ द अर्थ, जमीन के नीचे मिलेगा। तो क्लू तो दे दिया मंत्री ने, प्रिस्ट ने। अभी नेक्स्ट उसने उसको ऑर्डर दिया, बोला तत्प्राप्तुम यतस्व। तत्प्राप्तुम, अगेन द वर्ड प्राप्तुम इज तुमंतव्य, टू ऑब्टेन, टू अचीव। प्राप्तुम इज टू ऑब्टेन, टू अचीव। यतस्व means do some efforts, strive to obtain it. Okay, so बस राजा को एफर्ट्स लेने के लिए बोला है पुरोहित ने। अभी देखो, पुरोहित ने ये तो बता दिया कि ये सब कहाँ पे मिलेगा, बट कैसे मिलाना है, कैसे उसके लिए एफर्ट्स लेने हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना, इसने गाइड नहीं किया। एंड इसीलिए राजा ने अपने ओन डिसीजन से क्या किया, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने वाले हैं। ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा एक, ऑल द डायलॉग्स आर ऑफ वन न्यू कैरेक्टर विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर थर्ड कैरेक्टर। ओके, सो रीड करते। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम। तदा एट दैट टाइम, जब उसको ये आइडिया मिला कि सब कुछ जमीन के नीचे है, तभी पृथु तदर्थम, फॉर दैट मीन्स वो, धनुष्य बाण, सज्जीकृतम रेडी। सो किंग पृथु रेडीड धनुष्य एंड बाण टू अटैक ऑन द अर्थ। और अटैक करने के लिए उसने वो एंड उसका जो भी एरो है वो रेडी कर दिया, सज्जीकृत। नेक्स्ट, तदा भूमि ही, एट दैट टाइम भूमि ही मीन्स अर्थ, स्त्री रूपम धृत्वा, धृत्वा इज स्वांतव्य, स्त्री रूपम मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फीमेल, एक स्त्री के रूप में, फीमेल के रूप में। ओके, आई विल गो थोड़ा स्लो। ओके, अभी ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, प्लीज मैं जहाँ पे जो भी वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके पास ही देखना स्क्रीन पे, इधर उधर मत देखना, क्योंकि थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है। ओके, सो स्त्री रूपम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। भूमि ही मीन्स अर्थ, स्त्री रूपम इन द फॉर्म ऑफ फीमेल, धृत्वा धारण करना, धृत्वा मीन्स धारण करना। ओके, so after getting the form of female, the earth tasya puratah, in front of him, prakatita abhavat, manifested in front of him, prakatit hona, manifest hona, so earth manifested in front of him, form of female. The meaning is, पृथ्वी जो है के फॉर्म के सामने आकर प्रकट हो गई, ऐसा हम उसको हिंदी में कह सकते हैं। Then after that the next verb is avadat. Avadat means said, and then she said, क्या बोला उसने? हे राजेंद्र, ओ किंग, ओ ग्रेट किंग। अर्थ ने बोला, हे राजेंद्र, ओ ग्रेट किंग, तव पिता, योर फादर, दुःशासकः वेनराजः, दुःशासकः बैड रूलर, वेनराज is name of father पृथु, राजधर्म, Excuse me, I'm really sorry, but पालनम ना disturbing करो। voice. आपका आवाज थोड़ा कट रहा है मैम। यस सर। अच्छा, मैम आवाज कट रहा है थोड़ा आपका बीच बीच में।
Am I audible now? हाँ मैम अभी ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके, मैं एक बार रिपीट करती हूँ. कुछ बच्चे मैसेज कर रहे कि सेकंड सेंटेंस भी फिर से चाहिए. सो तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदच्च. इसका मीनिंग क्या हुआ? भूमिः मीन्स अर्थ, स्त्रीरूपम इन द फॉर्म ऑफ फीमेल, धृत्वा आफ्टर गेटिंग अ फॉर्म ऑफ फीमेल, फीमेल का फॉर्म धारण करने के बाद, तस्य पुरतः इन फ्रंट ऑफ हिम, पृथुराजा के सामने, प्रकटिता मैनिफेस्टेड, अभवत आ गई, अवदच्च एंड शी सेड, हे राजेंद्र, ओ ग्रेट किंग, योर फादर, तव पिता, दुःशासकः वेनराजः, बैड रूलर वेनराज, राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्. They have, they had not followed any kinds of royal duties. राजधर्म is royal duties and पालनम ना करोत, उन्होंने फॉलो नहीं की थी. कोई भी अच्छा काम राजा जो कर सकता है, करना चाहिए, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था. ओके, तो यहाँ पे साइड में देखो संधि विग्रह लिखा हुआ है. ना करोत इज नथिंग बट न प्लस अकरोत. वेरी सिंपल संधि. अ प्लस अ बिकम्स आ. न letter ends in a and next word अकरोत starts with a. So a plus a को एक ही बार में लिख दिया था आ. Hence हमारे combine word में आपको दिख रहा है ना, ना करोत. ओके, सो ध्रुत्वा का धातु जो है वो ध्रुधर धातु है. किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू. और देखो रिगार्डिंग ग्रामर जो भी क्वेश्चंस है, हम अलग से उसको ट्रीट करने वाले हैं. डोंट वरी एट ऑल. ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट तदा मया. तो अभी तक देखो ये भूमि जो है वो पृथुवन्य के साथ बात कर रही है. उसने बताया कि आपके पापा जो है वेरी बैड रूलर, बहुत ही बुरे रूलर थे, बिल्कुल अच्छे राजा नहीं थे. एंड हेंस तदा मया, एट दैट टाइम, मया मतलब मैंने, चोर लुंठक भयात. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. चोर लुंठक भयात. आई होप माय वॉइस इज क्लियर. चोर लुंठक भयात, तीन वर्ड्स है इसमें. चोर means thieves, luntaka means robbers, and bhayat means fear. So from the fear of thieves and robbers. Okay. Then next word देखो, धन धान्य पुष्प फलानी. इसको हम इतरेतर समास कह सकते हैं. 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है. धन means wealth, धान्य means grains, पुष्प means flower, फलानी means fruits. मम means my, udare means nihitani. Sorry, udare and nihitani. Mama means my, udare means stomach, nihitani means placed. I'm repeating it again. Mama my, udare belly, stomach, and nihitani placed. So simply यहाँ पे भूमि ने उसको क्या बोला? भूमि ने बोला कि your father was very bad ruler and hence I have placed everything, धन धान्य पुष्प फल जितना भी था सब मैंने अपने बेली में, मेरे स्टमक में फिर से प्लेस कर दिया. मैंने सब कुछ छीन लिया. ओके, तेरे राज्य में पहले सब कुछ था, बट तेरे पापा ने, वेन राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड इसीलिए मैंने सब कुछ जो है नष्ट कर दिया. मैंने फिर से उसको छीन लिया. बट आगे भूमि कुछ पॉजिटिव बात कह रही है. भूमि कह रही है, त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, बट यू आर वेरी वेलफेयर ओरिएंटेड किंग. प्रजाहित दक्ष, वेलफेयर ओरिएंटेड किंग. तुम बहुत अच्छे राजा हो भाई, तुम्हें प्रजा की बहुत फिक्र है. ऐसे भूमि ने पृथुवन्य का कहा. क्यों मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसने किसको कहा? क्योंकि हमें क्वेश्चन आ रहा है, कह कम वदति. ओके, तो इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः भूमिः सेड टू पृथुवन्य. देन यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तरी अहम प्रसन्ना भविष्यामि. If you त्वं sorry, यदि त्वं means if you, प्रयत्नेन with efforts, कृषि कार्यम means farming, karoshi means if you will do the work of farming with efforts,
तरी then aham I prasanna bhavishyami I will be pleased. प्रसन्ना मीन्स pleased. अगर तुम खुद एफर्ट्स लेके कुछ एग्रीकल्चर का काम करोगे, कृषि कार्य करोगे, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी एंड तुम्हारे वही काम का मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगी. ऑफ कोर्स जो भी धन धान्य पुष्प फल मैंने ले लिया है सब मैं वापस दे दूंगी. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा भूमि पृथुवैन्य को बोल रही है. Then lastly भूमि ने बोला अतः धनुः त्यज, hence give up that bow. धनुः means bow and त्यज means give up. This is विधिलिंग लकार. त्यज ऑर्डर किया है, वो बो जो है वो धनुष्य बाण नीचे फेंक दो और क्या करना है, कृषि कार्य एग्रीकल्चर करना है. ओके बट स्टूडेंट्स यहाँ पे भूमि का डायलॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ है. मेन कैरेक्टर है एंड इसीलिए बहुत बड़बड़ कर रही है भूमि. तो और एक सेंटेंस है भूमि का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. भूमि ने पृथुवैन्य को ये भी बताया है कि एग्रीकल्चर किया कैसे जाता है, क्योंकि इसके पहले उसके राज्य में किसी ने एग्रीकल्चर नहीं किया था. एंड इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे. खनित्राणि हलान कुद्दालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यम कुरु. पहला वर्ड देखो खनित्राणि, वहां पे पिक्चर भी ऐड किया हुआ है. ऑल दीज आर इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फार्मिंग. एग्रीकल्चर के सब इक्विपमेंट्स है ये. तो इन द सेंटेंस द वर्ड खनित्राणि इज इन प्लूरल फॉर्म, बहुवचन में है एंड पिक्चर में मैंने उसका सिंगुलर फॉर्म लिख दिया है खनित्रम. आई होप आपको इसका इंग्लिश वर्ड पता है, दैट इज स्पेड्स. खनित्राणी स्पेड्स. हलान मीन्स प्लाउज, मराठी में उसको नांगर बोलते हैं हलान को. कुद्दालकान मीन्स होज, कुद्दालकान मीन्स होज, कुदळ मराठी में. देन लास्ट वन इज लवित्राणी. लवित्राणी मीन्स सिकल्स. तो पूरे क्रॉप्स आने के बाद जो काटने के लिए यूज करते हैं दैट इज लवित्रम सिकल, जिसको मराठी में शायद सुरा कहते हैं. ओके अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मैंने जो पिक्चर ऐड किया है एक फार्मिंग का पिक्चर है जिसमें हमें हलह यानी कि नांगर दिख रहा है. तो वो अच्छे से प्लाऊ का पिक्चर देखो, उससे हम लोग प्लाउइंग करते हैं एंड उसी के वजह से हमारी जो खेती के लिए जमीन है वो फर्टिलाइज हो जाती है, थोड़ी रेडी हो जाती है टू सो द सीड्स इन दैट पर्टिकुलर लैंड. ओके तो बिफोर sowing a seeds we have to use the equipment huller. Okay now तो इक्विपमेंट्स देखने के बाद लेट्स मूव अहेड एंड पिक्चर से आपको पता चल गया होगा कि खेती का काम शुरू हो चुका है. एंड आफ्टर इक्विपमेंट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नथिंग बट जमीन चाहिए और ऑफ कोर्स जमीन के साथ साथ वेरी 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 क्रूशियल थिंग इज वाटर. तो पृथु राजा जो था उसको एक बार जैसे ही प्लान ऑफ एक्शन भूमि जी से मिल गया यानी कि अर्थ से मिल गया, तब ये पृथु राजा ने अच्छे से अपना एग्रीकल्चर जो है प्लान कर लिया. भूमातुः उपदेशम मनसी निधाय. पहला वर्ड है भूमातुः यानी कि गॉडेस अर्थ. उपदेशम एडवाइस, मनसी इन माइंड, निधाय यानी कि कीपिंग. निधाय इज लेबंतव्य स्टूडेंट्स, मीनिंग है कीपिंग. After keeping the advice of earth in mind, Prithuvanyah, King Prithu, Nadinam of rivers, Margam, way, path, Avarudhya, again a Lyabantavya. Lyabantavya is always end in ya. Okay, so Avarudhya means obstructing routes or ways or paths of river. कृषि कार्यार्थम फॉर द एग्रीकल्चर. जलस्य वाटर, उपयोगम यूज, अकरोत डिड. सो पृथुवैन्य used water by obstructing rivers, by obstructing the path of rivers. ओके तो पूरा जो भी संदेश एडवाइस भूमि जी ने दिया था, भूमाता ने दिया था, वो पृथुवैन्य ने अपने माइंड में रखा था. एंड एज पर दैट प्लान ऑफ एक्शन पृथुवैन्य ने सबसे पहले सोचा कि मुझे पानी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा, रिवर्स से आएगा.
तो रिवर वाटर का जो भी पाथ है उसको मैं ऑब्स्ट्रक्ट करके धीरे धीरे मेरे गांव में जहाँ पे जिस जमीन पे मुझे खेती करनी है, आई हैव टू सो सीड्स, वहां पे मैं ये जो पानी है उसको कन्वर्ट कर दूंगा, उसको वहां पे लेके आऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देन आफ्टर दैट वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। वृष्टि जल संचय स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका मीनिंग नोट डाउन कर लो। वृष्टि मीन्स रेन वाटर, जल मीन्स वाटर एंड संचय मीन्स स्टोर करना। तो रेन वाटर को स्टोर करना यानी कि वाटर मैनेजमेंट करना, जिसको हम साइंस में हम सीख चुके हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये पृथुवैन्य जो है वो ऋग्वेद के जमाने में 5000 ईयर्स पहले इतना होशियार था कि उसने ये नहीं सोचा सिर्फ कि मैं नदी का पानी यूज करूंगा, बट स्टूडेंट्स विद दैट ही थॉट दैट जब ये 4 महीने बारिश के चले जाएंगे तब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा। कुछ ऐसे क्रॉप्स भी है जो मुझे बारिश के बाद वाला जो मौसम आता है, ठंडी का मौसम, उसमें भी लेने हैं, तो तब मैं पानी कहाँ से लेके आऊंगा। तब तभी से उसने सोच लिया कि आई विल डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृष्टि जल संचय, मैं मेरा रेन का वाटर जो है स्टोर करके रखूंगा। एंड जल व्यवस्थापनम अकरोत, एंड इन दिस मैनर ही मैनेज द वाटर, उसने वाटर मैनेजमेंट कर लिया। जल व्यवस्थापनम, managing a water or water management. So Prithuvanya did water management by 2 ways. One, by obstructing the river water, and second is nothing but by storing the rain water. Okay, तो ये दो चीजें याद रखना, दोनों के ऊपर आपको एक 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 वाक्य न उत्तरम लिखत और पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत या फिर सत्यम असत्यम लिखत आने वाला है। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से देखना। वृष्टि जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उसने वाटर मैनेजमेंट किया, एंड नदी को ऑब्स्ट्रक्ट करके उसने खेती के लिए पानी यूज किया। तो अगर आपको पूछा कि पानी यूज कैसे किया, उपयोगम अकरोत आया, तो आपको नदी नाम मार्गम अवरुद्ध आंसर लिखना है। और अगर द क्वेश्चन इज जल व्यवस्थापनम कैसे किया, तो आपको लिखना है बाय स्टोरिंग द रेन वाटर, वृष्टि जल संचय। वो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव अहेड। अगेन पिक्चर से आपको समझ गया कि पानी तो आ गया भाई, जमीन भी है, सब इक्विपमेंट्स भी आ गए। अभी नेक्स्ट थिंग इज सीड्स। ओके, तो सीड्स कलेक्ट करने हैं, उसको चॉइस करने हैं कि मैं कौन सा क्रॉप लेने वाला हूँ, एंड देन वी हैव टू सो दैट सीड्स। ये सब प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे हम लोग पहले रीड करेंगे। भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतत। अभी देखो ये कोई भी स्लाइड्स पे संधि नहीं आ रहा है, तो संधि नहीं है ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में, एक एंड में संधि आने वाला है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो भूमिम आपको पता है अर्थ, उर्वरतमाम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्टिलाइज। ओके, अर्थ को मुझे अभी फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइज मतलब क्या, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थ को फर्टिलाइज करने के लिए हम प्लाउइंग करेंगे। ओके, अच्छे से प्लाविंग करने के बाद अर्थ जो है इट इज रेडी टू यूज फॉर एग्रीकल्चर। देखो कोई भी लैंड, अभी चलते चलते हम लोग यहाँ पे बम्बई में चलते चलते थोड़ी सी मिट्टी दिख गई तो वहां पे हम लोग खेती नहीं कर सकते। वो लैंड को हमें फर्टिलाइज करना पड़ता है, वो लैंड को हमें रेडी फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड बनाना पड़ता है, एंड इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है उर्वरतमाम कर्तुम। देन प्रायतत यानी कि एफर्ट्स, एफर्ट्स लेना, प्रयत्न करना। ओके, so simply that King Prithuvanya strived to make the land most fertile. Prayatata strived and Urvaratamam fertile. Then next, Tadanantaram, after that, Tasmin Kshetre, in that particular region of agricultural land, Janaha, all the subjects, सिर्फ राजा अकेला काम नहीं करेगा, of course सब subjects उसको help करेंगे. Janaha, धान्य बीजानी, धान्य means your grains and बीजा means seeds. तो ये जो seeds है अवपन सो, तो यहाँ पे after that people sowed the seeds of grains in that particular field. तो स्टूडेंट्स देखो ये तो यहाँ पे बोल दिया है, बट नेक्स्ट सेंटेंस जो है वहां पे सीड्स के बारे में कुछ और चीजें
एक्सप्लेन की गई है, राइटर ने एक्सप्लेन किया है। पहला ही यहाँ पे संधि आया हुआ है सनैकेभ्यः। ओके, स के बाद देखो मैंने वहां पे छोटा सा स्पॉट येलो कलर का ऐड किया हुआ है। दैट स्पॉट इंडिकेट्स यू दैट समथिंग इज मिसिंग देयर इन 2 वर्ड्स। ओके, एंड दैट मिसिंग पार्ट जो है आपको आंसर में दिख रहा है, दैट इज सह। स को हमने बना दिया है सह, वी हैव एडेड विसर्ग। तो ये संधि याद कैसे रखना है? सिंपली whenever you have two different words in combined word or in a sandhi wala word, whenever you have two different words in the combined word, it is 99% visarga sandhi. That means 99% it is the visarga sandhi. अभी आप बोलोगे कि मैम 1% क्यों रखा? फिर 1% रखना पड़ता है क्योंकि उदर एव, ऐसा अभी अभी जो संधि हमने सीखा which changes to उदरे प्लस एव, ऐसे टाइप का भी एक संधि है जो आप बाद में सीखोगे सेमेस्टर 2 में। तो ऐसे 2 संधिज है जो एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने बोला 99%। ओके, सो व्हेनेवर 2 वर्ड्स आर डिफरेंट देन 99% इट इज अ विसर्ग संधि। सो स का बन जाएगा सह, नेक्स्ट वर्ड रिमेन्स एज इट इज। ओके, सो मीनिंग देखते हैं। सनैकेभ्यः वृक्षेभ्यः, फ्रॉम डिफरेंट, वृक्ष मीन्स ट्रीज, भ्यः ऐड किया है, सो फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज, विविध प्रकाराणाम of different types, बीजानाम seeds, संकलनम, संकलनम means collection, new word for you, and chayanam means selection, collection and selection, collected and selected, cha means and, parishramena with efforts, akarot did. So पृथुवन्य ने क्या किया? From various from many various trees he has collected, संकलित किए some seeds and then selected from that seeds. पहले सब seeds उसने लाए, थोड़ा बहुत उसके ऊपर रिसर्च किया, टेस्ट किया कि कौन से seeds के लिए मेरे गांव की जमीन परफेक्ट है, एंड देन उसने वो सीड्स जो है सिलेक्ट किए कि कौन से सीड्स का क्रॉप्स में लेने वाला हूँ फर्स्ट। ओके, वही सीड्स सिलेक्ट करने के बाद अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, सो आफ्टर ये जो वर्ड है संस्करणम कृत्वा, उसका मीनिंग है आफ्टर रिफाइंड द सीड्स। तो देखो वो जमाने में भी ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि सीड्स, बीज जो है उसका प्रोसेस किया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है, उनको रिफाइंड किया जाता है, मतलब टेक्निक्स इतने डेवलप थे इंडिया में। ओके, आफ्टर दैट वपनम अकरोत, यानी कि ही सोल्ड, सो आफ्टर हैविंग पॉलिश्ड द सीड्स ही सोल्ड द सीड्स। तो बस यहाँ पे सीड्स के बारे में दिया हुआ है। तो देखो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, पहले उन्होंने इक्विपमेंट्स सब जो है कलेक्ट किए, इक्विपमेंट्स के बाद जमीन, जमीन के बाद जमीन को फर्टाइल बनाया विथ प्लाउइंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट लैंड, और फर्टाइल बनाने के बाद नेक्स्ट उन्होंने पानी की व्यवस्था की, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के बाद आता है सीड्स, उन्होंने अच्छे से सीड्स को कलेक्ट किया एंड उसमें से कुछ सीड्स को कलेक्ट करके फिर उनको सो कर दिया, उनको जमीन में पिरो दिया, एंड देन नेक्स्ट आता है ऑफकोर्स सीड्स हो गए तो मतलब यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर का आधा काम हो गया, अभी बस उनकी देखभाल करनी है एंड वी हैव टू वेट फॉर द फ्रूट, उनके रिजल्ट्स के लिए हमें वेट करना है। तो देखते हैं क्या है लास्ट पैरा में। पर्जन्यानंतरम, आफ्टर रेनी सीजन, रेन्स के बाद क्या हुआ? बीजेभ्यः, आपको पिक्चर में दिख रहा है वो राउंड शेप में वहां पे दिखा गया है, फ्रॉम दैट सीड अंकुराहा, यानी कि सम स्प्राउट्स। ओके, एंड udbhutaha means germinated, so after the rain sprouts germinated from the seeds, छोटे छोटे अंकुर वहां पे आने लगे। धान्य लाभेन, उसके बाद क्रॉप फिर बड़ा हो गया, एंड धान्य मीन्स ग्रेन्स। ओके, वो क्रॉप से उनको ग्रेन्स मिल गए, लाभ मीन्स ऑब्टेनिंग द ग्रेन्स। सर्वे प्रजाजनाः, ऑल द सब्जेक्ट्स, संतुष्टाः च अभवन्, संतुष्टाः समाधानी थे, अभी वो सेटिस्फाइड थे, हैप्पी थे। एषः कल्याणकारी नृपः, फाइनली राइटर ने ये स्टोरी बोलने के बाद स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया पृथु राजा ने, ही वॉज द फर्स्ट फार्मर ऑन द अर्थ। तो फाइनली उसको प्रेज किया है क्योंकि उसने बोला था कि मेरा काम देखने के बाद मुझे प्रेज करना, एंड इसीलिए राइटर बिल्कुल भूला नहीं है वो बात। एंड एंड ऑफ द
लेसन में उसने पृथु राजा को प्रेज किया है। क्या कहा है उसके बारे में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। सो एषः दिस पर्टिकुलर किंग इज कल्याणकारी। ओके, कल्याणकारी, वेलफेयर ओरिएंटेड किंग। कल्याण मीन्स वेलफेयर, अच्छा देखना, लोगों का भला देखना। नृपः किंग पृथिव्याम, ऑन द अर्थ। प्रशासने, प्रशासने यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अग्रणी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फोरमोस्ट। जनसेवा व्रती, नेक्स्ट वर्ड इज जनसेवा व्रती, committed to the service of public. Jana is public, seva is service, and vrati is committed. So this king Prithuvanya is very committed to public. And abhavat, became. So ऐसा एक राजा होकर गया who was welfare oriented as well as foremost in administration on the earth and was committed to the service of public. तो यहाँ पे 3 विशेषण हमें मिलते हैं for king Prithuvanya, which is our answer in the question. ओके, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब हमारे 3 आंसर्स होंगे विशेषण के लिए, कल्याणकारी, अग्रणी एंड जनसेवा व्रती। कल्याणकारी, अग्रणी एंड जनसेवा व्रती, 3 विशेषणस फॉर द वर्ड पृथुवैन्य। ओके, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपके मन में एक डाउट आया रहेगा, ये लास्ट लाइन अगर आपने अच्छे से सुना है तो। द वर्ड पृथुवैन्य इज मैस्कुलाइन, पुल्लिंग है। एंड अगर हम ये तीनों भी विशेषण देखेंगे, कल्याणकारी, अग्रणी एंड जनसेवा व्रती, दे आर साउंडिंग लाइक अ फीमेल वर्ड। ओके, तो जैसे गर्ल्स के नेम होते हैं मेनी अ टाइम्स, हमने सुना हुआ है जो ई में एंड होते हैं, खुशी, रश्मि, ई में एंड होने वाले वर्ड्स, तो ये वर्ड्स हमें कुछ उस तरह से दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये आपका होमवर्क है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट कल्याणकारी, अग्रणी एंड जनसेवा व्रती में ओरिजिनल वर्ड्स क्या है और वो मैस्कुलाइन किंग के लिए कैसे यूज किए हैं, दो दे आर लुकिंग लाइक अ फीमेल वर्ड्स और फेमिनाइन वर्ड्स। ओके, एक छोटा सा टास्क समझा है आपको? अगर किसी को आंसर आ रहा है अभी अभी तो मैसेज करना है आपको, चैट बॉक्स में लिखना है, टाइप करना है। यहाँ पे हमारा लेसन तो खत्म हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, चलो क्विकली आपको देखते हैं आपने सुना है कि नहीं अच्छे से लेक्चर, तो क्विकली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, मेलनम कुरुत, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 अलग अलग ग्रुप्स है। पहले ग्रुप में कुछ वर्ड्स है जो कि विशेषण है एंड राइट साइड वाले पार्ट में जो भी वर्ड्स है दे ऑल आर विशेष्यस, नाउन है। सो एडजेक्टिव एंड नाउन का पेयरिंग करना है, ज्वाइन करना है। Okay, Aditi Deshpande is replying for the task that earth is feminine and hence that 3 words are feminine. But बेटा यहाँ पे earth जो है वो वर्ड एक ही बार आया है which is related with प्रशासने। I hope कारकाणी में हमने सीखा है पृथ्व्याम, okay, is nothing but a place। तो earth यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है बेटा, earth is a place on the earth। These 3 adjectives are linked with King Prithuvanya. I'm telling you all the 3 adjectives are linked with King Prithuvanya. आपको find out करना है कि वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं feminine words जैसे, उसमें original word क्या है, ये जाके find out करना है। ओके, चलो तो अभी पहले यहाँ पे मेलनम कुरुता सॉल्व करना है। पहला देखो वर्ड है क्रूशाहा। क्रूशाहा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? I hope students you have spotted it correctly। आपके मेमोरी में फुल फिट हो गया। क्रूशाहा मीन्स थिन एंड ये एडजेक्टिव हमने, यस परफेक्ट, कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है। घाटकोपर हितेश ने करेक्ट आंसर दिया है, क्रूशाहा मीन्स थिन। सो
थिन वर्ड जो है, एडजेक्टिव जो है, हमने यूज किया था फॉर प्रजा। यस, तो हमारे राइट साइड के कॉलम में आंसर है प्रजाहा। देन नेक्स्ट है उर्वरा। तो हमने उर्वरतमाम ऐसा एक वर्ड सुना था, मीन्स फर्टाइल। तो फर्टाइल क्या होती है? लैंड, अर्थ, एंड इसीलिए आंसर इज भूमि ही। यस, श्रेया ने करेक्ट आंसर दिया है, द आंसर इज भूमि ही। तक्षिल ने भी आंसर दिया है। ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स। थर्ड वर्ड देखो, आनंदिता, वेरी हैप्पी। क्रॉप्स मिलने के बाद सबसे हैप्पी कौन हो गया? यस, ऑफ कोर्स, करेक्ट, प्रजाजनाहा। अथर्व ने परफेक्ट आंसर दिया है, प्रजाजनाहा। ऑल द सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी। देन फोर्थ है दुशासकः, बैड रूलर। यस, सो एक ही किंग था, दो किंग इसमें हमने देखे, वेन एंड पृथु। एक किंग वाज वेरी बैड एंड इसीलिए उसको बोला है दुशासक, एंड दैट किंग वाज वेनः। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है प्रजाहित दक्ष, वेलफेयर ओरिएंटेड किंग। कौन है? यस, स्टोरी का हीरो पृथुवैन्य, एंड आवर आंसर इज पृथुहु। ओके, तो आप एग्जाम में कुछ इस तरह से उसको लिखोगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कवर्ड हो गया है ये पूरे लेक्चर में। अभी आपका टास्क ये होगा कि आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है भाषा अभ्यास, प्लीज मार्क करके ले लो या फिर नोट डाउन करो। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एक वाक्येन या पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। देन क्वेश्चन 3 एंड 4 है, डायग्राम्स दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स, वो आपको सॉल्व करने हैं। And on second page, I think there are 2 more questions. Prashna nirmanam kuruta, and one more question is कह कम वदति. Okay, ये 4 questions ही आपको solve करने हैं. Do not solve the questions of grammar. Means I am not expecting that you have to solve questions of grammar before your the topic is over. So हर एक grammar का topic हम धीरे धीरे देखेंगे, and उसमें सब questions और each and every lesson के सब questions हम लोग ग्रामर टॉपिक के अंडर सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए वो जो सूचनानुसारम कृति ही कुरुत वाला पार्ट है वो आपको अभी सॉल्व नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अगर आपको कोई डाउट्स है तो अभी भी 5 मिनट है, यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स। ओके, समवन इज आस्किंग पेज नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक। ऑफ कोर्स बेटा, लेसन नंबर 1 के पीछे भाषा अभ्यास में अभी इतना मैंने पेज नंबर लर्न नहीं किया है, सॉरी। ओके, तो अभी तक 3 टॉपिक्स कवर हुए हैं, कारकाणी, देन उपपद विभक्ति सेंटेंसेस, एंड देन आफ्टर दैट आज कवर्ड हुआ है लेसन नंबर 1। इफ वी डोंट हैव टेक्स्ट बुक, श्रेया ने मैसेज किया है टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आपको ई टेक्स्ट बुक मिल गया है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो वो आपको यूज करना है। तक्षिल ने, ओ वाव तक्षिल, ग्रेट काम कर दिया है। तक्षिल ने पेज नंबर मेंशन किया है, पेज नंबर 7। Okay, great students. So I hope you have enjoyed the lesson of King Prithuvanya. So we'll stop here and we'll be meeting